بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ ہماری لوکل لیڈرشپ ساری آئی ہوئی ہے. ایم پی ایس بھی ہیں یہاں پہ, ہمارے پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں قاضی صاحب, اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے یہاں پہ لیڈرشپ ہے وہ ساری یہاں پہ بیٹھی ہوئی آج جن سے ملاقات ہوئی ہے. ایجوکیشن کے سارے لوگ ہیں, ڈپارٹمنٹ کے, اسکول ایجوکیشن کے, اور کافی ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. آئی تھنک بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ آ کے ایگزیکٹلی لوکیشن پہ اور ایریاز جہاں پرابلم آ رہی ہیں جو کہ سب جگہ پہ ہیں, وہاں کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایکچولی پتہ لگتا ہے کہ واقعی میں کیا کیا ان کے جو مین ایشو یہاں پہ آ رہا ہے وہ ہے لیک آف اسکولس. سب کو پتہ ہے کہ حکومت کے فائنینشیل کنڈیشنز کیا ہیں اور جس کی وجہ سے اسکولس بنانے میں کافی پرابلم آ رہی ہے, مگر جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا نیا پلان ہے رینٹڈ بلڈنگس کے اسکولس کھولنے کا, آئی تھنک اٹک سے کوئی اور جگہ نہیں ہوگی ٹو اسٹارٹ ود. جس طرح ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں, تو ایک دفعہ لاہور میں وہ میں سوچ رہا ہوں کہ سکسیزفلی وہ پروگرام ہو گیا تو ود ان نو ٹائم ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہی پروگرام باقی پنجاب میں اور اٹک میں بھی, کیونکہ اٹک کے جتنے ایشوز میں نے سنے ہیں وہ مینلی یہی ہیں کہ وہ اسکول چاہتے ہیں, ان کے بچے اسکولوں میں جائیں. اسپیشلی لڑکیوں کا جو ہے کافی ایشو آ رہا ہے کہ ان کو ڈسٹینس پہ جانا پڑتا ہے اور ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے اسکول. اور کئی اسکول ہیں جن کو پچھلی حکومت نے کمبائن کر دیا, ان کو ہم دوبارہ سیپریٹ کرنے جا رہے ہیں. آج ان اسکولس کی ڈیٹیلز سی او ایجوکیشن لاہور جو ہے, لاہور کے نام سی او ایجوکیشن اٹک جو ہے ان کے پاس یہاں پہ آ گئی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ میرے خیال سے ود ان ویکس اف ناٹ ود ان ڈیز ان اسکولس کو سیپریٹ کر دیا جائے گا. اور جتنی پرابلم سنیے, دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے کہ آ کے آپ اعلان کر کے چلے جائیں اور بعد میں وہ چیزیں پوری نہ ہوں. سو کوئی اعلان نہیں میں نے کیا ہے ایسا, مگر میرے خیال سے جو پرابلمس ہیں ان کو ہم نے ون بائی ون سنا ہے اور ساری پرابلم سنی ہے. بیٹھ کے تقریر کر کے چلے جانا, کھڑے ہو کے تقریر کر کے چلے جانا بڑا آسان ہے, مگر آئی تھنک جب آپ کو بیٹھ کے ہر ایک کی پرابلم سننی پڑے اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے اور اس کو کسی نہ کسی حل کی طرف لے کے جانا پڑے, تو دیٹس دا ایکچوئل آئی تھنک وہ اصل کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ آج کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس کیا آتے ہیں, کیونکہ جب دوبارہ واپس آؤ گے تو پھر ہوپ فلی اگر وہی پرابلمس ہوئی تو اس کا مطلب پرابلم ہمارے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں, پرابلم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو ضرور. یہ اٹک میں جو ابھی بچوں کی پڑھائی پہ جو کافی ایک اثر پڑا ہے, آگے جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گی کوئی چھٹی نہ ہو, تو سر اس دفعہ اس سال کے اندر جو پرائمری میں ایلیمنٹری یا ہائی اسکول کے بچے, تو سر یہ اگر انہوں نے اس پورے سال میں اگر 4 ماہ پڑھا ہے انہوں نے, تو ظاہر کورس تو انہوں نے پورا نہیں پڑھا. تو سر اس کا جو ایگزام ہوگا, کیا آیا وہ جو 4 ماہ انہوں نے پڑھا ہے اس سے ایگزام لیا جائے گا, یا وہ پورا جو کورس ہے اسی کا ایگزام لیا جائے گا؟ اچھا ہو گیا نا ایسا, منسٹر جس کو کم از کم یہ چیزیں ساری پتہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے اتنے سوالوں کا جواب دینے. تبھی میں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں. ہم نے کورس جو ہے اس کو پہلے سلیبس کو چھوٹا کر دیا, جو ہم نے اسکولوں تک پہنچا دیا کہ اسکول اس وقت پڑھا رہے ہیں. جو اس وقت کنسائز ہمارا سلیبس ہے ایگزام صرف اس پہ ہوگا, سارے پہ نہیں ہوگا. جو اس وقت ہم نے کرونا کی وجہ سے سلیبس دیا صرف اس پہ ایگزام. ران اسمبلی جو ہے ان کو کوٹا الاٹ کر دیا گیا ہے, اور اس چیز کا خود جو یہاں سے رکن قومی اسمبلی ہیں انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے کی ہے کہ کوٹا ملا ہے ان کو. جی کوٹا سب کو دیا گیا ہے اور شفافیت جو ہے نا جی. میں سر یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کوٹا ملا ہے, ایم این اے صاحب. جی ملا ہے. اچھا ایم این اے صاحب نے آپ کو خود میڈیا میں کہا کہ مجھے کوٹا ملا, میں نے نہیں, مجھے کوٹا چاہیے نہیں. جی سر. اچھا انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, مجھے ملا ہے. جی سر ریکارڈڈ ہے سارا یہ. اچھا جی جی مجھے نہیں پتا اس بات کا. سو میں تو خود سرپرائز ہوں کہ وہ ایم این اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا کوئی تو کہتے ہیں نا ہمیں کوٹا نہیں ملا اس لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا تو وہ اس احتجاج میں کہہ رہے ہوتے ہیں. سو انہوں نے یہ کہا میڈیا کو کہ مجھے کوٹا ملا ہے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے کیوں دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ میرٹ کی بنیاد پہ کیا جائے. اچھا نہیں میرٹ نہیں ہو رہا ہے. جج ہارم کا کیا میرٹ ہے میں آپ کو بتاؤں.
मैट्रिक की डिग्री चाहिए आप, और आपको अपना लोकल डोमिसाइल चाहिए। जितने लोग अप्लाई करेंगे नंबर में लग जाएंगे, जितने हो सकेंगे वो हो जाएंगे। गिनती के लोग हैं, हम कौन से यहाँ पे कोई हज़ारों लोग रखने जा रहे हैं या कुछ 100 रखने जा रहे हैं, जो कि रखने चाहिए हमें। अब मेरा नंबर 1 टारगेट है कि ये टीचर्स पूरे करने और ये दर्जा हरम पूरी करनी है, क्योंकि इनके बगैर बात नहीं बन रही। अगर हम यही बैठ के करते रहे कि ये नहीं, क्योंकि ये पहले साइन पोस्ट हैं, इनकी पहली सब में से अवेलेबल है, सब चीज़ें पहले की नहीं है। सो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली मेरिट में होगा। इसके लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट और लोकल डोमिसाइल चाहिए। इसमें ये कोई हम कोई टीचर्स तो हायर करने नहीं जा रहे हैं, उनके लिए हमने NTSE रखा हुआ सब। वो मेरिट के सिस्टम है, मिले साहब बता दें हमें बता दें। आपने कह तो दी बात। क्या ये जो सवाल किया जा रहा है इसके संबंध में क्या ये उन्हें पहले पता चल गया कि ये मेरिट और काम हो रहा है या नहीं, बल्कि मेरिट हो रही है? मुझे तो ये बात पता भी नहीं है। सो इसलिए गिनती की 30 जॉब्स आई हैं, अप्लाई करने वाले मेरे ख्याल से हज़ारों में शायद। 4,000 मैं देख, मुझे पता नहीं था, मैंने आपको पहले बता दिया कि हज़ारों में लोग होंगे। सो इसलिए जो भी पहले 30 नंबर पे आ जाएंगे, जिनका क्राइटेरिया में जो फिट हो रहे हैं वो इनको मिल जाएंगे। सर सुनने में आ रहा है कि मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होंगी, कि कितने अरसे के लिए होंगी, कब से? मेरी पूरी कोशिश है कि एक छुट्टी भी ना मिले मेरी, इसलिए क्योंकि बच्चों ने मेरे ख्याल से इतनी छुट्टियां कर ली कि उनको और छुट्टियां मिलनी नहीं चाहिए। अगर तो हम सर्दी की वजह से छुट्टी दे रहे हैं तो वो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ना सर्दी कम हो जानी है ना ज़्यादा हो जानी है। अगर खुदा न खास्ता कोरोना की वजह से स्पाइक आता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हमें उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन हमारा जो है वो सारा वीक टू वीक और डे टू डे हम उस पर देख रहे हैं, जो हमारे रिजल्ट सारे कोरोना उसके। जी सर, excuse me, पीटीआई के हवाले से बात कर रहे हैं, पीटीआई गवर्नमेंट तालीम के हवाले से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सर में 17 इनिशिएटिव्स ले चुके हैं, 70 दिन के। उन पूरे 17 के 17 इनिशिएटिव्स जो है वो ऑन ग्राउंड है, कोई फाइल नहीं है। उसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हमने ट्रांसफ़र किया, आपको पता लगा 4 लाख टीचर की ट्रांसफ़र हर साल का होता है। 2.5 अरब की करप्शन हमने इसकी वजह से बंद की है। हर ट्रांसफ़र शुरू होती थी 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये रिश्वत होती थी। ये 2.5 अरब की हमने करप्शन साल की बंद की। हमने आफ्टरनून स्कूल, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स लेकर आए, जहाँ पे 70% बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे थे, वहाँ पे हमने दोपहर को स्कूल शुरू किए ताकि बच्चे वापस स्कूलों में आ गए। 22,000 बच्चा वापस स्कूलों में आए। इसके अलावा हमने जो हम कंस्ट्रक्शन के अपने प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, 2000 क्लासरूम इंशाल्लाह ताला जनवरी तक तैयार हो जाएंगे। 1000 साइंस लैब होगी, 1000 कंप्यूटर लैब होगी, 400 लाइब्रेरीज होगी। इसके अलावा जो हमने किया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हम उर्दू की तरफ लेके गए ताकि बच्चों को समझ आए। रोट लर्निंग खत्म हो। रोट लर्निंग की होती है, आप प्राइमरी में बच्चों को समझा रहे हैं एक फॉरेन लैंग्वेज के अंदर, जब वो फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाएगा जिसके साथ 23 घंटे में उससे कोई अंग्रेजी नहीं बोल रहा, ना माँ ना बहन भाई ना उसके दोस्त ना रिश्तेदार, और आप कहते नहीं तुमने कॉन्सेप्ट जो है ना अपने सारे क्लियर करने हैं इस फॉरेन लैंग्वेज के अंदर, तो किस तरह वो कर सकते हैं? ये सर एक सवाल है मेरा, जैसे अभी आपने फरमाया कि जो मेरिट पे भर्तियां, सर मैं ज़रा इनका जवाब पहले दे दूं। जी सर। उसके बाद सर हमने सबसे पहली ECE किताब, जो एक नई बिल्कुल किताब है इंटरनेशनल लेवल की, मेरे पास गाड़ी में, मैंने बल्कि अपने PTI के दोस्तों को भी देनी है, वो मंगवा भी दें। वो हम आप देखना कि जो बच्चों के लिए बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की किताब हम लेकर आए वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। फिर हमने ये 1 मील प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे पता होता तो मैं अपने सामने रख लेता वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमने 17 चीज़ें की हैं जो कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पिछली गवर्नमेंट के साथ। ये ब्रांड न्यू 17 इनिशिएटिव्स थे और सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं। हम टीचर लाइसेंसिंग लेकर आ रहे हैं, डॉक्टर का लाइसेंस है, लॉयर का लाइसेंस है, टीचर का लाइसेंस क्यों है? वो हमारा लॉ डिपार्टमेंट के पास है। प्राइवेट स्कूल्स का जो लॉ है वो हम जो 1984 का बना है, जो कि अपडेट होने वाला था, इस वक्त वो स्पेशल कमेटी, सब कमेटी जो है उसकी कैबिनेट की, उसके पास। सो हमने तो वो चीज़ें कर रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं, और वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएंगी और ऑन ग्राउंड नज़र आ रही हैं, जो जिसके रिजल्ट्स हमारे पास हैं। और हमें एक चीज़ भी कोई ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ा या हमें वापस करना पड़ा कि नहीं ये फैसला ठीक नहीं था, क्योंकि हमने हर फैसले से पहले अपना पूरा होमवर्क किया। एक सिलेबस 1 से लेकर मुझे बताएं कौन
कौन सी है? हमारे गाँव में ठीक है, सीओ साहब को, सीओ साहब के साथ कोशिश तो ऐसी होती है कि अगर ऐसी बिल्डिंग है जो अबैंडन है और स्कूल शिफ्ट हो गए तो उस बिल्डिंग के से चौकीदार में ऐसी नुकसान होते हैं क्योंकि इसका स्मार्ट मीटर कोई कब्जा कर सकता है, कोई डिफिकल्ट पॉइंट कैसे ना हो, बिल्डिंग में बंदा अवेलेबल बच्चे नहीं होते तो वो ऐसा अबैंडन पड़ जाती है। बैंड पड़ी रहती है, वो उस बिल्डिंग होता है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मगर आप सीओ साहब से बात करें, स्कूल की बिल्डिंग है तो वो जरूर इस पर देखें। सीओ साहब डॉक्टर साहब क्या है? सर इमरान खान का मुख्तलिफ विजन थे जो उसने पेश किए थे ना। एक विजन मेरे ख्याल में ये भी था कि यकसर तालीमी निज़ाम पूरे मुल्क में राज हो। उस हवाले से सर पंजाब में क्या सूरत हाल नज़र आ रहा है, इस बारे में ज़रा मतलब बताएं। देखें, जो यकसा तालीमी निज़ाम का है वो सबके लिए एक जैसा होगा। वो इंशाअल्लाह ताला उसका हमारा प्लान है, हो जाना था अभी तक, ये कोरोना की वजह से सब चीज़ें की। सो उसके लिए मेरे ख्याल से मार्च 21 अगले 5 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो नया स्कूल का सेशन शुरू होगा उसमें आपको नजर आएगा। सर प्राइवेट स्कूलों में अक्सर सिलेबस कापियाँ बाजार पे सस्ती हैं, वो महंगी हैं, वो खुद विद्या सप्लाई करते हैं, ठीक है। तभी मैं जो 1984 का प्राइवेट स्कूल एक्ट था उसको चेंज कर, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज करने का तैयार नहीं, क्योंकि पिछली हुकूमतों के वजीर जो थे वो खाते थे पैसे प्राइवेट स्कूलों से और उनकी जो भी बात होती थी वो मान ली जाती। अब प्राइवेट स्कूलों की बातें ज़रा माननी मुश्किल है मेरे ख्याल से, ना मैं मानने के लिए किसी की भी बात तैयार हूँ। सो इसलिए प्राइवेट स्कूल एक्ट के अंदर ये लिखा जा रहा है कि जो उनकी चीज़ें होंगी वो कहीं भी एक जगह से नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ओपन मार्केट से जाकर कोई भी कहीं से भी ले सकती। करप्शन के हवाले से बात हो रही है। मैंने साहब ने कहा है करप्शन जो है आपकी बढ़ गई है पहले की निस्बत। पहले एक काम 10,000 होता था, 50,000 में। मेरे डिपार्टमेंट का बताएं, करप्शन कम हुई है यहाँ के नहीं हुई है? यहाँ आपके डिपार्टमेंट तो ठीक है, नहीं, मैं अपने डिपार्टमेंट के जवाब दे सकता हूँ ना, मैं बाकियों का ये तो इम्प्रूवमेंट हो गई। अगर आपको वाकई में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट नजर आती है कि नहीं नजर आती है? है सर। सर यावर साहब आपने कोई जवाब दे रहे थे उसके मतलब जो मेरिट पर जो नहीं वापस ना सर यावर साहब से मैं एक सवाल करूँ, यावर साहब के नोटिस में लाना जी चाहता हूँ। बिल्कुल। यावर साहब पीपल्स कॉलोनी में तकरीबन हज़ारों की तादाद में आबादी है। पीपल्स कॉलोनी, फारूक आज़म, तकबीर कॉलोनी और दारुस्तान। यहाँ पर कोई प्राइमरी या हाई मतलब कोई स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए है लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात है हमारे मिनिस्टर की, वो कहते हैं बड़ा टाटा मिनिस्टर है, मैं वही करता करता अपनी मर्जी। और आप ये देखें कि जो भी स्कूल अपग्रेड हुए हमें 2 स्कूल मिले, लेकिन वो मेरिट सिस्टम ऐसा है कि मैं जाकर लड़ाई भी नहीं कर सकता। मतलब भाई है ना, हम लोग MPAs हैं, खुदा ने इनको इज्जत दी है, मिनिस्टर बने, लेकिन मेरिट सिस्टम इनने ऐसा रखा हुआ है कि जहाँ पे आप जाकर फिर बहस नहीं कर सकते, और वो बड़ा शफाफ है। उसके लिए हमारी कोशिश है, हर कोई चाहता है कि अपने हल्के में दोबारा जाए, इलेक्शन लड़े, और कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो उसे ना की, हर चीज़ में हिस्सा डाले। लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर इतनी मजबूरियाँ हैं फाइनेंशियल, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ख्वाहिशात हैं नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो है भी ऐसा आहिस्ता आप देखेंगे आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर होगा, और होता हुआ आपको नजर भी आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला दिस विल हैपन। ये देखें जी, कभी आपने सोचा था कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक ऐसी किताब दी जाए? ये हम गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों के लिए फ्री किताब ये लेकर आए। ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो ECE की क्लासरूम होती है, जब बच्चा शुरू होता है, स्कूल आता है जब, उसके लिए मैं आपको दिखाऊं ये चीज़ क्या है। ये देखें, इसके अंदर किताबें हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, उर्दू में लिखा हुआ है तस्वीर के साथ। ये देखें, उर्दू, इंग्लिश और अरबिक। ये उनको सिर्फ बताने के लिए कि क्या है, ये देखें काउंटिंग क्या होनी है, ये देखें शेप्स क्या है, आगे क्या है जी, एनिमल्स क्या है, ये सारी चीज़ें। और ये किताब कैसी है, ये देखो, इस किताब को कुछ नहीं, ठीक है, आपके सामने मैंने कर दिया, वापस कुछ नहीं हुआ इसके कौन सा भी पेपर है वो नहीं मैं बताना तो ये देख लें आप, ये हमने पंजाब के उनमें भिजवाई है बच्चों के लिए 80,000 70,000 इतने। तो ये मैं सबसे पहले तो DC साहब को देना दिलाओ, बाकी तो ये PTI वालों के लिए भी ना हमारे ये प्रेसिडेंट साहब देखिए ये, और ये बाजार से नहीं मिलेगी किसी को, ये मिलेगी सिर्फ
डिपार्टमेंट वालों ने अपने बच्चों के लिए सबके लिए करवाई है। इनको भी अच्छा जी, और सर ये मेरे साथ पड़ी हुई है काफी बिल्डिंग जी बहुत है, अगर स्कूल के लिए कुछ हो जाए पीपल्स कॉलोनी में जगत बहुत ज़्यादा है। आपकी फैमिली के बच्चे मेरे को एंजॉय करेंगे। मैं आऊँगा गुजरात साहब, ये जो खवातीन असातिज़ा हैं, बॉयज़ स्कूलों में तैनात हैं, इनको गर्ल्स स्कूलों में शिफ्ट करने के वो लिए करना है। पॉलिसी बना रहे हैं। जी, ये जरा आप जरा सवाल मैं आगे सवाल पे सर कि क्वेश्चन है मेरा जी। कोरोना का सेकंड स्पेल आ रहा है। मैं इनके सवाल पहले एक मिनट देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि फीमेल टीचर्स फीमेल स्कूल्स में जाएं और मेल टीचर्स मेल स्कूल्स। कई जगह पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका मूव करने का हमें, मगर मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला इस टर्म के एंड से होने से पहले ये पूरा मसला इत्तेफाक हो जाए। मैं चाहता हूँ कि टीचर्स के मसले हल करूँ ताकि वो असली काम करें जो उनका काम है पढ़ाना। तभी ये ट्रांसफर वाला सिस्टम क्यों खत्म किया, सारा हमने वो फोन पे कर दिया, क्या वो प्रॉब्लम खत्म हो गई? इसी तरह उनकी प्रमोशन, उनकी लीव्स, उनका हर चीज मैंने फोन पे कर देंगे। इस डिपार्टमेंट को मैंने एंड पे फोन पे कर देना है ताकि ये सारे काम छोड़ें, करप्शन खत्म हो, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी सिर्फ तब आएगी जब आप डिजिटल बना देंगे। तो पीटीआई तब से ये भर्तियां कर रही है टीचर्स की, 2.5 सालों में नजर नहीं आता। टीचर्स की भर्तियां उसी तरह होंगी, मुझे इस पर फैसला मैं कर रहा हूँ, उस पर पूरा प्लान बना रहा हूँ, मैंने समरी भी चला दी है इंशाअल्लाह ताला। ये वो वाली भर्तियां नहीं जिस तरह पहले होती थी, वो वाली भर्ती नहीं होगी, ये होंगी बस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में, बस इससे आगे नहीं। सर क्वेश्चन आखिरी सवाल सर, ये रिमोट मीटिंग्स में सर कोरोना का सेकंड स्पेल जो अभी सुनने में आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है, लोग जो है वो ऑनलाइन स्टडी की तरफ वो जाते हैं, तो अर्बन एरियाज में तो ये इंटरनेट फैसिलिटीज जो है वो हैं, ये रिमोट एरियाज के लिए सर उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, उसके लिए कोई प्लान सर आपका है? देखिए, हमने पहले भी जो किया था ना, हमने पूरी 36 इस्लाह के तालीम घर की भी चला। तालीम घर सुबह 8 बजे शुरू होता था और 2 बजे तक क्लासेस होती। मुझे डिफरेंट, आप सोच नहीं सकते किन इलाकों से, क्योंकि ये टीवी पे आता है और डिफरेंट केबल जो ऑपरेटर्स हैं हर जगह आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में, और मैंने देखे हर जगह, तो वहाँ पे उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारा चलाया क्लास तालीम घर के। लोगों ने मुझे अपने बच्चों की तस्वीरें भेजी खींच के, वो देखें टीवी पे बैठ के देख लें तालीम घर। सो 8 बजे से लेकर 2 बजे, मगर मैं समझता हूँ कि हमारे लोग अभी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं। स्कूल जाना ज़रूरी है और बहुत हर जा रहा है बच्चों के पढ़ाई के अंदर, मुझे पता है, और इन चीज़ों से अभी हम ये सब सारी दुनिया की नई चीज़ है, ऑनलाइन हमारे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। सो इसलिए अभी जस्ट अपना टाइम लगेगा, मगर मैं कन्विंस नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया।